now being recorded. Hello. We will start our webinar very shortly. Please stay connected with us. Ma'am, wait for 2 minutes. Yes, sir. We are going to start our webinar very shortly. I welcome you all the participants to this webinar on mutual fund, a unique way of investments. We are going to start our webinar very shortly. I welcome you all the participants to this webinar on mutual fund, a unique way of investments. Hello, sir. Shall we start? Yes, ma'am. Okay. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. All right. So good afternoon, all of you. A very warm welcome to all of you. I, Professor Janki Patel, from Patel Group of Institution, heartily welcome you all. Patel Group of Institution is GTU affiliated college which is situated in Mehsana, North Gujarat. We are offering two courses, MBA and MCA. Well, thank you so much, my dear participants, for joining us for today's webinar on mutual fund
a unique way of investment. As you all know, our resource person of today's webinar is Professor Ritesh Amarsela sir. He is working as assistant professor in Patel Group of Institution, and he is also resource person in SEBI. So we will take maximum advantage of his knowledge. One more announcement is, after completion of this session, at last we will conduct question answer session. So come up with your doubts and questions at last. Sir will solve it. And after completion of this webinar, I will share one link with you, one Google form, and please fill that feedback form. Within 2 days, you have to submit that feedback form within 2 days so that we can provide you e-certificate on the basis of that. Well, without wasting any time, without any further ado, we will start our webinar. We will turn on the time over to our presenter, Mr. Ritesh Amarsela, sir. So it is over to you, sir. Okay, thank you, Janki ma'am. I would like to heartily welcome all the participants for this webinar, Mutual Fund, a Unique Way of Investment, on behalf of Patel Group of Institutions. Now, there are three levels of learning in any subjects. First one is basic level. In basic level, you have to learn the different concepts of the topics or the subject. Second level is the advanced level. But in advanced level, you learn some extra in addition to the basic level. And third one is a technical level. Now, in the technical level, you will get, if we talk about the mutual fund technical level, you will get the advisory of mutual fund investments or different mutual fund investment techniques. This is a student development program, and it is an awareness program in which you will be aware about the different way of investments in mutual funds. इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि एज ए स्टूडेंट्स आप कुछ भी स्टडी कर लो, आप एमए करो, एमबीबीएस करो, एमबीए करो, कोई भी कुछ भी आप स्टडी करो, उसके बाद आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो, उसका जो पैरामीटर्स है वो सोसाइटी और फैमिली और रिलेटिव्स और डिफरेंट पैरामीटर के बेस पे आपको जज करते हैं आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट। तो उस सभी अलग अलग पैरामीटर्स है कि आप सक्सेसफुल आप करियर आपने बनाई है या नहीं बनाई है। उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर इज योर अर्निंग, व्हाट इज योर सैलरी लेवल। वो एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है, राइट। तो अर्निंग इज अ मस्ट आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन और आफ्टर योर स्टडी, because society is a very professional, right? Society is a very professional, they will judge you on the basis of your earning. So आज के सेमिनार में मैं आपको बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड इन द लास्ट 15 minutes we will keep reserve for your question and answers. Now there are three activities: save, spend and invest. काफी बार ऐसा होता है, काफी फैमिली मेंबर्स या काफी जो लोग हैं उसका ये तीनों प्रकार के नेचर्स है, तीन प्रकार के इन्वेस्टर्स या तीन प्रकार के लोग हैं सोसाइटी में। पहले प्रकार के लोग कि दे आर ओनली सेविंग, दे आर अर्निंग इज अ मस्ट, राइट, बट उसके बाद दे आर सेविंग ओरिएंटेड। दूसरा कैटेगरी है वो दे आर स्पेंडिंग ओरिएंटेड, they are spending more, they are habituated to more shopping, luxurious shopping, right?
तीसरा है इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड। तो आपको एज ए डियर स्टूडेंट्स आपको ये डिसाइड करना है कि ये तीनों कैटेगरी में आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आपका अप्रोच सेविंग ओरिएंटेड है, आपका अप्रोच एक्सपेंस या स्पेंड ओरिएंटेड है, या आपका अप्रोच इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड है। पहले क्या होता था कि अगर वी टॉक अबाउट द बिफोर 20 इयर्स का जो टाइम ड्यूरेशन था, उसकी जो उस टाइम की जो जनरेशन थी, उस टाइम पे अर्निंग कम थी, राइट। तो डेफिनेटली स्पेंड भी कम होगा, सेविंग भी कम होगा। मगर यू पीपल आर द लकीएस्ट पीपल, द टुडेज जनरेशन इज रियली ए लकीएस्ट जनरेशन, राइट। क्योंकि आज आपके पास मल्टीपल स्टडी के और जॉब्स के और बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो जिससे आपकी इवन मंथली सैलरी भी आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन वो लेवल भी इंक्रीज हुआ है, राइट। तो पहले क्या था कि भाई ऐसा पहले ट्रेडिशनल ऐसा था कि भाई इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग, तो वो गलत तरीका है। आज के टाइम में इन द करंट फिनेंशियल एजुकेशन जो नया मंत्र है वो है इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू योर एक्सपेंसेस। मतलब आपको पहले इनकम में से आपको आपका सेविंग का जो पोर्शन है वो रिड्यूस करके बाकी का जो अमाउंट है उसमें आपको अपना घर चलाना है या आपको एक्सपेंस करना है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो अभी तक के जो भी मिलियनर है या बिलियनर है उसका अगर जो मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट मंत्र है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मंत्र है तो 3 मंत्र ही है वो आपको ध्यान में रखना है। पहला है मैक्सिमाइज योर इनकम, पहला मंत्र है मैक्सिमाइज योर इनकम। आपको कैसे भी करके आपको आपकी इनकम के सोर्स बढ़ाना है। आप जब स्टडी करने के बाद जब आप अर्निंग करना स्टार्ट करो तो एक ही इनकम के सोर्स पे आपको लिमिट नहीं रखनी। यू मस्ट हैव टू इंक्रीज योर 3 सोर्स ऑफ इनकम। आपको कम से कम इनकम के 3 सोर्सेस आपके पास होने चाहिए, राइट। ये आपका पहला मंत्र है एज ए स्टूडेंट वंस यू कंप्लीट योर पोस्ट ग्रेजुएशन। दूसरा मंत्र है रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। आपको क्या करना है, ठीक है आप स्टूडेंट्स हो तो आप अभी अर्निंग नहीं कर रहे हो मगर खर्चा तो कर रहे हो, एक्सपेंसेस तो कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको आज के टाइम में खर्चे का एक लिस्ट बनाना है और उसमें से यू हैव टू रिड्यूस द अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अब कौन कौन से अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर रहे हो वो रिड्यूस करके आपको आपका सेविंग बढ़ाना है। ये चीज तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट आज से ही आपको ये चीज इंप्लीमेंट करनी है कि आप कहाँ पे आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर रहे हो और उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, वो भी आपका एक अर्निंग ही है, राइट। तो मैक्सिमाइज योर इनकम, सेकंड वन इज रिड्यूस योर एक्सपेंसेस, थर्ड वन इज कन्वर्ट योर सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। जितना आपका सेविंग हो रहा है उतना सेविंग आपको जल्द से जल्द आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है। पहले मेरे एक अंकल थे, राइट, दादाजी थे। मैंने उनको पूछा कि दादाजी आपने पूरी जिंदगी में कितना कमाया? बोले मैंने पूरी जिंदगी में बिजनेस किया या खेती काम किया या फार्मिंग किया तो उसमें से मैंने 20 लाख रुपए मैंने सेविंग किया था। ठीक है, तो 20 लाख रुपए का आपने क्या किया? तो दादाजी बोले कि वो 20 लाख रुपए तो मैंने मेरे खेतर में डाल दिए कि जिससे मेरे बहू और बेटे को पता ना चले। तो मैंने बोला ठीक है, वो कितने सालों से वहां पे है? बोले वो 20 लाख रुपए तो कम से कम 10 साल हो गया है, मेरे बेटे और बहू को भी पता नहीं है, राइट। तो देखो मैंने बोला उसको आपने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया? बोले बेटा मेरे पास नॉलेज ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। अगर दादाजी ने वो 20 लाख रुपए सिंपल फिक्स डिपॉजिट में भी रख दिए होते तो वो 40 लाख हो सकते थे। तो दादाजी ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, दादाजी के पास नॉलेज नहीं था, राइट। मगर यू पीपल आर द फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, यू मस्ट बी द वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स। आप लोग वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होने चाहिए, राइट। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फाइनेंशियल एक्सपर्ट रिसर्च, इंडियन लोग है, भारतीय जो लोग है वो पैसा कमाने में, आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू म्यूट योरसेल्फ। I request all the participants to mute yourself. You people must be well informed. यही हमारी कॉलेज का और ये जो सेमिनार है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि यंगस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक फिनेंशियल एजुकेशन दिया जाए, राइट। इंडिया के जो एक्सपर्ट के जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली
हम लोग हमारा 95% टाइम कैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो उस पे हम फोकस करते रहते हैं। यहाँ से मैं कमा लूंगा, वहां से कमा लूंगा, शेयर मार्केट से कमा लूंगा, एफडी से कमा लूंगा, या फिर मैं दूसरी शॉप्स खोलूंगा, फार्मिंग करूंगा, राइट। हम उसमें ही लगे रहते हैं, मगर उसका जो प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग है उस पे हम फोकस ही नहीं करते। बेसिक्स जो रूल्स है फिनेंशियल प्लानिंग के, उस पे हम कभी फैमिली के साथ में बैठ के कभी हम डिस्कस नहीं करते कि भाई हमारे पास ये पैसा है, हम ये पैसे को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो, विथ नॉमिनल रिस्क और विथ एवरेज रिस्क या विथ हाई रिस्क, राइट। वो हम हमारा 5% टाइम भी उसमें हम नहीं इन्वेस्ट करते। यूएसए में अलग है। यूएसए की अगर हम बात करें तो वहां पे दे पीपल आर स्पेंडिंग 80% time on earning and 20% time on research, investment research on how to invest, where to invest, why to invest, right? तो आपको ये चीजें ध्यान में लेनी है। Now next, one minute. Okay, what is wrong with just saving? इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी चीज है और उसके बारे में अगर आप बीकॉम के या बीबीए के स्टूडेंट्स हैं तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। इन्फ्लेशन की बात करें तो उसको हम बोलेंगे फुगावा, गुजराती में हम बोलेंगे फुगावा, राइट, मोंघवारी दर, राइट। 20 साल पहले जो चीज जितने में मिलती थी उससे डबल अमाउंट आज वही चीज हमें मिल रही है, और जो चीज आज हमें मिल रही है जो प्राइस में, उसकी प्राइस 20 साल के बाद 4 गुना या 5 गुना हो सकती है, राइट। तो हम आगे देखेंगे इन्फ्लेशन का। यस, ठीक, सी दिस चार्ट। हमने यहाँ पे 5% अगर हर साल हमारे एक्सपेंसेस जो है तो 5% से भी बढ़ते हैं, तो आप देखिए आज जितना जो चीज 30 रुपए में मिल रही है वो 20 साल के बाद वो चीज हमें 80 रुपीज में मिलेगी, वो भी एट 5% इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट किया है तब। दूसरे जो चार्ट है उसमें दिया गया कि अगर आज जो वैल्यू 100 रुपीज की है, 100 रुपीज में हम जितनी जो वैल्यूएशन है उसकी वैल्यूएशन 100 रुपीज की वैल्यूएशन 20 साल के बाद 35 रुपीज हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू 35, 100 रुपया इक्विवेलेंट टू 35 रुपीज हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? दिस इज द अटैक ऑफ द इन्फ्लेशन ऑन आवर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। इसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन खा गया हमारा सेविंग और हमारा हार्ड अर्न मनी। देखिए, at 7% inflation, a 100 rupees note will become a 50 rupees in 10 years time. तो ये चीज, ये क्या है? ये है इनविजिबल अटैक। जैसे कोरोना है वो इनविजिबल अटैक कर रहा है, कहीं पे दिख नहीं रहा, फिर भी हॉस्पिटल फुल हो रही, राइट। तो ये इन्फ्लेशन भी इनविजिबल हमारा एनिमी है जो हमारा हार्ड अर्न मनी और हमारा इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशंस को इंटरनली रिड्यूस करता है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, जब हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब प्लानिंग करें तो कोई भी अगर हम जब इंटरेस्ट रेट की बात करें कि भाई एफडी में इतना 6% रिटर्न मिलता है, राइट, बॉन्ड में 7% रिटर्न मिलता है, या शेयर मार्केट में इतना रिटर्न मिलता है, तो बेसिक आपको ध्यान में ये रखना है कि मुझे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो इन्फ्लेशन रेट से हायर होना चाहिए। वही आपका इन्फ्लेशन रेट अगर 7% है और इन्वेस्टमेंट जो आपने किया उस पर आपको 9% रिटर्न मिल रहा है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 2%, तो 2% इज योर नेट इंटरेस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन रेट 7% है मगर आपने इन्वेस्टमेंट किया 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एफडी पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो आप अगर 7 - 6 करते हो तो आपको सिर्फ फॉर एग्जाम्पल -1% रिटर्न आपको फिक्स डिपॉजिट में मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम में इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में लेना है।
Now let us test our understanding. This is for your homework. If your monthly expenses are 1 lakh per month, how much your monthly expenditure be in 15 years time, assuming at 5% inflation? आज मेरा घर का खर्चा 1 लाख रुपीस है, राइट? अगर हर साल 5% महंगाई दर या इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होता है, तो आफ्टर 15 इयर्स मुझे वो 1 लाख का मेरे घर चलाने के लिए मुझे कितना मनी मुझे चाहिए, मुझे अर्न करना होगा, राइट? तो it will be around 2.8 lakh rupees, right? You can calculate by yourself. One. Yes. Now, always there are two different class, assets and liabilities, right? तो ये डिफरेंट ऑप्शंस है. जब अभी आप स्टूडेंट्स हो, अभी आप अर्निंग नहीं कर रहे हो, राइट? मगर जब जैसे जैसे आपकी जॉब लगेगी, आपका रितेश सर, आपको वापस शेयरिंग करना पड़ेगा. सॉरी फॉर इंटरप्ट. Okay, 1 minute. Everyone, please wait. I am sharing again. Don't share anyone, please. Don't share your screen. Sir. I am sharing it again. Request all the participants to wait for a few minutes. Yes. Sorry for interruption. Now, जब आप जैसे जैसे कैरियर आगे बढ़ाएंगे, जैसे आपका अर्निंग स्टार्ट होगा, तो ये सारी चीजें आपको इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा. आप यू हैव टू इंक्रीज योर सेविंग, यू हैव टू स्पेंड ऑन योर कॉलेज एजुकेशन या ऑन योर नेक्स्ट जनरेशन एजुकेशन. इंश्योरेंस प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? रिटायरमेंट प्लानिंग. You have to buy new car if you want. Again, education, investment on your next generation. Investments or expenses on healthcare. आज के टाइम में this is very important, right? Money required for vacations, money required to buy a new house, right? तो ये आपकी आगे जाके आप चाहो या ना चाहो, ये आपकी लाइफ में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है, राइट? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. Now, these are the three important words: wealth creation, wealth preservations, and risk preservations. Wealth creation means you can invest into, if you want to create a wealth, you have to invest in mutual fund. Wealth preservation means you can invest your fixed deposits, right? And risk preservation for you have to buy a insurance. See, for wealth creation, mutual fund is the best option. For wealth preservation, bank account is the best options. And for risk preservation, you have to buy insurance. Now, again, bank accounts, insurance, these all are the different aspects. तो एक बहुत बड़े subjects है, right? So that we will arrange a different webinar on insurance in the next
coming time. Remember, all three are important for a financially healthy life. आप किसी को अवॉइड नहीं कर सकते, आप ये तीनों चीजें आपको इक्वली फोकस करके इंपॉर्टेंस देके यू हैव टू इन्वेस्ट. प्लीज नाउ रिटायरमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया में ओनली एक्सेप्ट गवर्नमेंट जॉब्स, जो गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं, only hardly 8 to 10% people are planning for their retirement, right? USA में most of 95% people are planning for retirement, right? Retirement planning आज के टाइम में बहुत ही important है, right? Because money is having a value. जिसके पास मनी है उसको सोसाइटी को देखने का नजरिया अलग है, जिसके पास वेल्थ नहीं है उसको देखने का नजरिया अलग है. जब तक आप अपनी फैमिली में एसेट्स हो, जब तक आप कमा रहे हो, तब तक यू आर द एसेट्स, एवरीबडी विल बी हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी. मगर जैसे ही अर्निंग बंद हुआ, राइट, जैसे ही रिटायरमेंट लिया आपने और उस टाइम पे अगर आपके पास वेल्थ नहीं है, देन इट विल क्रिएट अ डिफरेंट प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, राइट. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको खुद का एक रिटायरमेंट फंड्स अलग से बनाना है और वो दैट इज ओनली फॉर योर रिटायरमेंट. वो आपको आपके नेक्स्ट जनरेशन को नहीं देना है. इट इज सोलली राइट ऑफ यू फॉर योर रिटायरमेंट प्लान. Again, a homework for you. There is a 30 years difference in your and your father's age. He thinks you should be doing fine if he accumulated rupees 2 crore by the time he retired. आपके और आपके पापा के बीच में 30 साल का एज का डिफरेंस है. आपके पापा सोच रहे हैं कि भाई मैं जब रिटायर होऊंगा तब 2 करोड़ मेरे लिए ओके, राइट. तो इसका मतलब ये कि आप नेक्स्ट 30 to 40 इयर्स के बाद आप रिटायर होंगे. आपके पापा रिटायर हो जाने के बाद आप नेक्स्ट 30 to 40 इयर्स के बाद आप रिटायर्ड होंगे. तो नेक्स्ट 30 to 40 इयर्स जब आप रिटायर्ड होंगे, तो अगर हम इन्फ्लेशन रेट 7% भी गिने तो कितना अमाउंट आपके पास होगा, और उसके इंटरेस्ट से आपका घर, आपका रिटायरमेंट जो एक्सपेंसिस है ओल्ड एज का, वो आप बेयर कर पाओगे. सो इट विल बी अराउंड 16 करोड़, राइट. उसके लिए आगे रिटायरमेंट कैलकुलेटर भी दिया गया है, right? So these are the, I will share this PPT with you all people. You through this link you can plan your retirement. आपको आपका वर्किंग अमाउंट डालना है, कितनी साल पे आप रिटायरमेंट होने लेना चाहते हो वो अमाउंट डालना है, राइट. और उस टाइम पे आपको कितना कॉर्पस चाहिए जिससे आपको हर महीने पेंशन, आपकी जो एक्सपेक्टेड पेंशन है वो आपकी मिलती रहे. तो दैट यू कैन कैलकुलेट बाय योरसेल्फ. नाउ डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास है. इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है. बैंक में एफडीज है, इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी है, म्यूचुअल फंड्स है, गोल्ड है, स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड्स है, और भी सारे ऑप्शंस है, राइट. तो ये सभी का आपके पास, आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास नॉलेज होना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इज अपकमिंग सब्जेक्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स. आप जब इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करो तो मैं तो आपको एक एडवाइस देता हूँ एज ए बिग ब्रदर कि जैसे ही आपका मास्टर डिग्री करने के बाद आपका जैसे ही फर्स्ट सैलरी स्टार्ट होता है, तो आप में से वो अमाउंट में से आपको कम से कम 30 से 40% अमाउंट इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट. अगर आप जितना लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आपको क्या नुकसान होता है मैं आगे वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा. तो आप जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैठो तो आपको ये सारे फैक्टर्स ध्यान में लेने हैं. फाइट इन्फ्लेशन फॉर यू, राइट. आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो इट मस्ट बी बेटर देन इन्फ्लेशन रेट. प्रोवाइड इनकम वेन यू नीड इट. आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आपको जब इनकम चाहिए तो आपके उससे आपको इनकम मिलनी चाहिए. बी एक्सेसिबल एंड यूजेबल इन पार्ट्स एंड पोर्शन. जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तब आपको वो पैसा इजीली मिल जाना चाहिए और आपको काम में आना चाहिए. अगर आप पूरा पैसा, फॉर एग्जांपल पूरा इन्वेस्टमेंट्स आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपको वो पैसा, उसमें आप लिक्विडिटी बहुत कम है, वो 15 साल के बाद कुछ अमाउंट आप विड्रॉ कर पाओगे, राइट. उसी तो वो भी एक गलत डिसीजन होगा. अगर पूरा पैसा आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो इट मीन्स अगेन इट इज ए रिस्की डिसीजन, राइट.
ग्रो इन वैल्यू एंड एप्रिशिएट ओवर टाइम। धीरे धीरे आपका पैसा आपको वैल्यू, आपकी वैल्यू क्रिएट करना चाहिए, मनी वैल्यू क्रिएट करना चाहिए या प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए। बी रियलाइजेबल एट फेयर वैल्यू एंड लो कॉस्ट। देखो, आपको एक आपका गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कितना परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, राइट। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे 25% इंटरेस्ट मिले, वहां पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, राइट, तो फिर वो आपका पैसा, आपकी प्रिंसिपल जो है, कैपिटल है, वो जाने ही वाली, राइट। तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो रिजनेबल होना चाहिए, राइट, नहीं लोअर होना चाहिए, नहीं हायर होना चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना है। एसेट एलोकेशंस। एसेट एलोकेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स इन द फाइनेंस मैनेजमेंट। मैंने जैसे आपको बताया कि पूरा पैसा आपको पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पूरा पैसा आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको एक थाली बनानी है। जैसे हम लंच पे अलग अलग आइटम्स लेते हैं, ऐसे ही आपका इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग पोर्शंस में अलग अलग इन्वेस्टमेंट टूल्स पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे करेंसी ट्रेडिंग है, स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, रियल एस्टेट्स है, गोल्ड है, बॉन्ड्स है, फिक्स डिपॉजिट्स है, राइट, पोस्टल स्कीम्स है। नाउ ये सारे मैंने दो पार्ट डिवाइड किया है कि कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे जो आपकी वैल्यू क्रिएट, आपका जो फंड है उसकी वैल्यू क्रिएट करता है, राइट, और कुछ फंड ऐसे, कुछ इन्वेस्टमेंट टूल ऐसा है जो आपको इनकम जनरेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी, गोल्ड, आर्ट कलेक्शन, इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, वो आपकी फंड वैल्यू ग्रो करता है, तो इट कम्स अंडर द ग्रो इन वैल्यू। दूसरा जो आपको इनकम जनरेट करके देता है कि भाई मुझे ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 5 साल के बाद मुझे हर महीने इतना चाहिए या अमाउंट चाहिए, तो बॉन्ड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, पीपीएफ, बैंक डिपॉजिट्स, कंपनी डिपॉजिट्स एंड इवन द म्यूचुअल फंड्स। देखो, म्यूचुअल फंड के पास दोनों ऑप्शंस हैं, अलग अलग टाइप्स अकॉर्डिंगली और अलग अलग स्कीम से अकॉर्डिंगली आप ऐसे कुछ फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जहां पे आपकी वैल्यू ग्रो होगी, और ऐसे भी फंड्स अवेलेबल है जहां पे आपकी इनकम भी जनरेट होगी। तो ये आपको जब एसेट एलोकेशन करो तब ये चीजें आपको ध्यान में लेनी है। नाउ वी कम ऑन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड क्या है? This is very awareness seminars, right? So it is related with the, you are all are students, you are not earning, right? And you don't have some basic knowledge about the finance or financial planning. By considering this thing, I have prepared this PPT, right? So म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो। म्यूचुअल फंड कंपनी एक फंड मैनेजर की टीम बनाती है जिसके पास एमबीए, फिनांस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीएफपी और 15 या 20 सालों का इक्विटी मार्केट का रिसर्च का एक्सपीरियंस हो, ऐसे फंड मैनेजर की टीम होती है। तो फंड मैनेजर जो फंड कलेक्ट होता है जिस स्कीम में, वो स्कीम में, पर्टिकुलर स्कीम में वो इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलर स्कीम से, फॉर एग्जांपल एक स्कीम में 50 करोड़ रुपए कलेक्ट किए, तो 50 करोड़ रुपए का अलग अलग शेयर मार्केट में स्टॉक्स परचेस करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में से जो भी इनकम जनरेट होती है वो आपको, इन्वेस्टर को वो रिटर्न करता है। तो आप बोलोगे स्टूडेंट्स की, तो सर हम डायरेक्ट शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट ना करें, हम क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें? डायरेक्ट मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मगर पूरा पैसा डायरेक्ट मार्केट में नहीं करना चाहिए। ये दिस इज द इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट मार्केट्स में क्या होगा, अगर आप फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप अपना 5 लाख रुपीस का ही आप स्क्रिप्ट या पर्टिकुलर शेयर परचेज कर सको। मगर आपने जिस फंड मैनेजर को पैसा दिया उसके पास टोटल फंड हुआ है 50 करोड़ का, तो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग सिलेक्टेड कंपनीज में वो ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपके पैसे का होगा। इस डाइवर्सिफिकेशन अगर ज्यादा होता है, जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन इन फाइनेंशियल लैंग्वेज, तो वहां पे रिस्क आपका रिड्यूस हो जाएगा, राइट। और अगर आपने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो वहां पे आपका डाइवर्सिफिकेशन कम होगा, जिससे आपका रिस्क हाई रहेगा। दूसरी चीज, कंपेयर टू फंड मैनेजर, हमारे पास जो रिसर्च बेस्ड नॉलेज नहीं होता। फंड मैनेजर के पास जो नॉलेज होता है वो रिसर्च बेस्ड नॉलेज होता है, और वो कलेक्टिवली टीम ऑफ फंड मैनेजर डिसीजन लेते हैं। तो वहां पे भी वो आपका इन्वेस्टमेंट और नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए आई बिलीव दैट एवरी इन्वेस्टर have to invest in mutual fund. Why invest in mutual funds?
आप बोलोगे सर क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दिस आर द सम एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। लो कॉस्ट, देखो 50 करोड़ को मैनेज करना है, हम 5 लाख को मैनेज कर रहे हैं डायरेक्ट इक्विटी में जाके, वो फंड मैनेजर 50 करोड़ को इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वहां पे एवरेज कॉस्ट है वो कम रहेगी। दूसरा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यस, प्रोफेशनल टीम ऑफ फंड मैनेजर इज मैनेजिंग योर फंड, दैट इज व्हाई it is advisable to invest in mutual fund. रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने बोला, वो अलग अलग स्क्रिप्ट में, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनियों की रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो वहां पे आपका रिस्क, कैपिटल रिस्क या इंटरेस्ट रिस्क आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है। It is regulated by SEBI, you know that Security Exchange Board of India, controlling the equity markets and mutual fund, right? So from the investor protections point of view and from the investor awareness point of view, SEBI is doing really good activities, different seminars and different awareness workshops. So it is, if anybody is having a complaint, SEBI can handle the complaint of the investors. वेरी कन्वीनियंट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। आज के ऑनलाइन के टाइम पे आप डायरेक्ट रात को 2 बजे भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। म्यूचुअल फंड की वेबसाइट, कोई भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे आप जाके नेट बैंकिंग के थ्रू आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसी तरह आप डायरेक्ट, आप पैसा अगर आपको विड्रॉ करना है तो यू कैन विड्रॉ योर मनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लिक्विडिटी, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी, मुझे रात को 2 बजे पैसा चाहिए तो मैं रात को 2 बजे भी विड्रॉ करके रिडम्पशन दे के, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में रिडम्पशन दोगे तो आपका पैसा 1 डे या 2 डे में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 1 मिनट। Yes. Next one. Yes. Mutual fund structures, schemes, categories. Now different type के funds है, जिसमें पहला है इक्विटी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जिसको पहला टाइप्स है, बाकी बहुत सारे टाइप्स है मगर मैंने मेन टाइप्स यहाँ पे लिए हैं। इक्विटी फंड्स इन्वेस्ट इन इक्विटीज एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंपनीज। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फंड मैनेजर्स इक्विटी मार्केट में 100 रुपीज का 70 रुपीज वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो किसके लिए इंपॉर्टेंट? अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, राइट, और शेयर मार्केट का प्लस माइनस, जिसको हम बोलते हैं वोलेटिलिटी, उसका अगर आप एवरेज रिटर्न चाहते हैं तो इक्विटी फंड्स आर द बेस्ट वन, सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स विद हायर रिस्क एपेटाइट एंड लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होराइजन। ये कैसे इन्वेस्टर्स के लिए है? जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हाई रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगा कि मेरी जो रिस्क कैपेसिटी है इन्वेस्टमेंट की वो कम है, आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है इन्वेस्टमेंट करने की वो ज्यादा है, मेरे से डबल है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब लास्ट अर्निंग करने के लिए मेरे पास 20 ईयर्स है, आप लोगों के पास अर्निंग करने के लिए एटलीस्ट 40 ईयर्स है, राइट। तो आपके पास होराइजन है, ड्यूरेशन है वो ज्यादा है, जिसके लिए आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो। एवरेज आउट का जो साइकिल है उसका आप ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो। तो आपके लिए ये आप फंड्स स्टडी करने के बाद इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा है डेट फंड्स। डेट फंड्स का फीचर्स क्या है? इन्वेस्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। यस, ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते फंड मैनेजर, मगर जो गवर्नमेंट फिक्स इनकम सिक्योरिटीज है, जैसे शॉर्ट टर्म पेपर्स है, बॉन्ड्स है, राइट, सिक्योरिटी पेपर्स है, इसमें वो फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे उनका कैपिटल, आपका जो कैपिटल डेप्रिसिएशन का रिस्क है वो कम हो जाएगा, राइट। अगर आपको एक फिक्स इनकम इंटरेस्ट इनकम चाहिए और आपको हाई रिस्क नहीं ले सकते, तो आपके लिए ये डेट फंड्स इज द बेस्ट ऑप्शंस। डेट फंड्स एक मेन कैटेगरी है, उसमें भी अलग अलग सब कैटेगरीज है। वो जब आप इन्वेस्टमेंट करो तब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आपको एडवाइजर की बेनिफिट्स ले सकते हो या एडवाइस ले सकते हो। नेक्स्ट है हाइब्रिड फंड्स।
पहला देखा इक्विटी जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरा देखा हमने डेट फंड जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तीसरा है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स ऐसे हैं जो दोनों का मिक्स 50% इक्विटीज में और 50% डेट में फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। तो आपको इक्विटी का रिटर्न और फिक्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स का आपको सेफ्टी दोनों आपको मिलेगा, राइट। तो अगर आपको मिक्सचर ऑफ इनकम एंड मॉडेस्ट कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो हाइब्रिड फंड्स इज द गुड ऑप्शंस। म्यूचुअल फंड स्कीम्स विच वन टू बाय, देखो रिस्क एंड रिटर्न, आपको जब इन्वेस्टमेंट करो तब आपको ये दो पैरामीटर्स ध्यान में रखना है। अगर आप हाई रिस्क और हाई रिटर्न में मानते हो, आपकी अप्रोच या फिलोसॉफी इन्वेस्टमेंट की हाई रिस्क और हाई रिटर्न की, तो आपको यू हैव टू सिलेक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी या अप्रोच मॉडरेट रिस्क या मॉडरेट रिटर्न है, देन यू हैव टू सिलेक्ट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम्स। अगर आपको लो मॉडरेट, नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे मेरा पैसा, मुझे इंटरेस्ट कम मिलेगा तो भी चलेगा, मगर मेरा कैपिटल सेफ रहना चाहिए और कुछ परसेंटेज अमाउंट मुझे मिलना चाहिए, अगर आपका ऐसा अप्रोच है तो आपको यू कैन इन्वेस्ट इनटू दैट स्कीम, राइट। और अगर लो रिस्क और लो रिटर्न में है तो लिक्विड स्कीम आपके लिए ऑप्शन है, राइट। तो ये भी लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल नए इन्वेस्टर है या यंग इन्वेस्टर्स है तो वो इक्विटी स्कीम से स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वो हाइब्रिड और डेट और लास्ट में लिक्विड स्कीम्स तक आ जाता है। तो जितना आप लेट स्टार्ट करोगे इन्वेस्टमेंट करना और सेविंग करना, उतना आपका इक्विटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा और हाइब्रिड या डेट में ज्यादा होता जाएगा, जहाँ पे रिस्क कम है और रिटर्न भी कम है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ या एडवाइस दे रहा हूँ या आपको बोल रहा हूँ कि यू स्टार्ट योर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, अगर आप FI बीकॉम में कोई बात नहीं है, आप हर महीने अगर 500 रुपीज का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, देन इट इज ऑल्सो ओके। इट विल गिव यू द गुड वेल्थ क्रिएशन इन योर लाइफ, बिकॉज जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी देन यू कैन इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट्स। Again, the homework for you people, that Ram is your friend. He is a risk-averse investor. He want to accumulate some money to go on vacation after 2 years. Which kind of fund he should invest in? देखो, ज्यादा रिस्क उनको नहीं लेना है और 2 साल के बाद उनके पास वेकेशन में जाने का टूर का पैसा हो जाए, उतनी वेल्थ बनानी है, then he or she have to invest in overnight fund. Now, scheme related documents, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स स्कीम रिलेटेड, जिसमें आपको मिलेगा SID, राइट, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। उसमें क्या क्या आपको बताया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि म्यूचुअल फंड की स्कीम क्या है, उसका फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, इन्वेस्टमेंट पोर्शन क्या है, राइट, स्ट्रेटेजी क्या है, इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, वो आपको पूरा स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में से आपको और भी रिक्वायर्ड जो इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए, ऐसी कॉमन डिटेल आपको स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में से मिलेगी। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, राइट, जिसमें आपको पूरा एक्सपेंस रेशियो क्या है, फंड मैनेजमेंट चार्जेस क्या है, राइट, वो पूरा आपको डिटेल में की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में आपको पता चलेगा। आपने अगर म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी तो उसमें आता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज ए सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आपको वो मार्केट रिस्क आपको पता है, राइट। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स पहले स्टडी करना है, राइट। म्यूचुअल फंड की कोई भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, इवन MP की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा, राइट। उसको स्टडी करने के बाद आपको आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। ये फैक्ट शीट है, मैंने UTI म्यूचुअल फंड से डाउनलोड करके बनाई है। तो ये फैक्ट शीट भी आपको सारी डिटेल देगी, जैसे हिस्ट्री ऑफ द स्कीम, कहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कौन कौन से ऑप्शंस है, NAV क्या है, परफॉर्मेंस हिस्ट्री क्या है, अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो फैक्ट शीट भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डिफरेंट प्लान्स है और डिफरेंट प्लान्स और ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के। उसमें 2 प्लान है, डायरेक्ट प्लान्स एंड रेगुलर प्लान्स। देखो, डायरेक्ट प्लान क्या है कि पहले ऐसा होता कि जब डायरेक्ट प्लान्स अवेलेबल नहीं थे, राइट, आपको रेगुलर प्लानिंग में ही इन्वेस्टमेंट करना होता था। जब आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट प्लान, राइट। उससे फायदा क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर का या म्यूचुअल फंड एजेंट्स का जो कमीशन है वो आपको वहाँ पे 0 रहेगा, राइट। तो आपका
पूरा इन्वेस्टमेंट आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा। रेगुलर प्लान्स यानी आप जब डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर प्लान्स। दूसरा, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो दो ऑप्शंस है, ग्रोथ ऑप्शंस एंड डिविडेंड ऑप्शंस। देखो, ग्रोथ ऑप्शन एंड डिविडेंड ऑप्शन, इसमें एक्चुअली में क्या है, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आपको बताना चाहता हूँ। Capital appreciation in the investments are plowed back in the scheme and are reflected in increase in the NAV. Investors do not receive any periodic payments, suitable for investors who do not require regular income. Tax efficient। देखो, अगर आपको लगता है कि मुझे ये पैसा मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उससे मुझे कोई डिविडेंड नहीं चाहिए, वो भले अपने आप ग्रो होता रहे 5 साल या 10 साल तक, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड स्कीम में, कोई भी स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो स्कीम का नाम और उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा, टिक करना होगा फॉर्म में कि ग्रोथ ऑप्शन या डिविडेंड ऑप्शन। तो आपका अगर आपका फंड को ग्रो करना है फॉर लॉन्ग टर्म, तो आपको ग्रोथ ऑप्शन पे टिक करना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि नहीं, मुझे तो मेरे इन्वेस्टमेंट में कुछ पैसा मुझे रिटर्न में मिलता रहना चाहिए, मेरे अकाउंट में क्रेडिट मिलती रहनी चाहिए, तो आपको डिविडेंड ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। अब वो डिविडेंड कैसे मिलता है मैं आपको बताऊं। पहले म्यूचुअल फंड में हम देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है। आपने अगर 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है और एनएवी 10 रुपए है, राइट, एनएवी क्या है, पर यूनिट प्राइस है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, राइट, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, उतने यूनिट्स कंपनी आपको, आपकी ओनरशिप है। आप जैसे ही पेमेंट करते हो म्यूचुअल फंड कंपनी को, तो आपको पहला स्टेटमेंट मेल के थ्रू मिल जाएगा कि आपने ये तारीख को 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है, उस दिन की एनएवी 10 रुपए थी, राइट, तो आपको यूनिट मिल रहा है 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, तो आपको कितने यूनिट मिलेंगे, 100, राइट। तो उतने यूनिट्स आपके ओनरशिप है। अब जैसे जैसे आपकी एनएवी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी वैल्यूएशंस भी बढ़ती जाएगी। अगर 10 रुपए की एनएवी 12 रुपए हो गई, तो मतलब आपका फंड का 20% ग्रोथ हुआ है। अगर ग्रोथ ऑप्शन आपने टिक किया तो वो 20% ऐसे ही रहेगा, आगे आगे ग्रो होता जाएगा। अगर आपने डिविडेंड ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आप क्या होगा, 20% जो ग्रोथ हुआ है वो पैसा आपके अकाउंट में म्यूचुअल फंड कंपनी ट्रांसफर कर देगी, और एनएवी अगेन फिर से वो आपकी जो 20% रिड्यूस हो जाएगी, पर यूनिट प्राइस आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो आपको देखना है कि मेरा फंड लॉन्ग टर्म ग्रो होना हो तो ग्रोथ ऑप्शन सही है। आप अगर देख रहे हो कि नहीं, मुझे टाइमली मुझे डिविडेंड मिलते रहना चाहिए, तो आपके लिए डिविडेंड ऑप्शन सही है। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लमसम यानी अगर फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी जो भी है उसका मैं 20%, मुझे लग रहा है कि हर साल मुझे 10,000, हर महीने मुझे 10,000 इन्वेस्टमेंट करना है, तो हर महीने में 10,000 रुपये कोई पर्टिकुलर स्कीम में स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, उसमें मैं लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। दूसरा है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। अगर मुझे हर महीने इन्वेस्टमेंट, आपको मुझे लगता है कि हर महीने मेरे अकाउंट में से डिडक्ट हो जाना चाहिए डायरेक्टली पैसा, इतना 5,000 रुपये हर महीने डिडक्ट हो जाना चाहिए, तो एसआईपी इज द बेस्ट ऑप्शन। आगे ये चारों मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में है। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान और इंटर स्कीम स्विचेस, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ। पहले देखते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी। SIP is a method of investing a fixed sum at a regular interval in a mutual fund scheme. Daily, weekly, fortnightly, monthly options. Similar to monthly saving schemes like a recurring deposits, a saving cum investment tool. अपना गुजरातीओं में कहेवत છે કે ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય. A particular scheme, a particular જે prop છે અહીંયા implement થાય છે, right? तो दर महीने हर महीने हमारा जो इन्वेस्टमेंट, हमारा जो अर्निंग है उसका 10% जो भी वो आपका डायरेक्टली आपके अकाउंट में से म्यूचुअल फंड स्कीम में ट्रांसफर होता जाएगा, और उसका वैल्यूएशंस का स्टेटमेंट, फंड स्टेटमेंट आपको मेल के थ्रू कंपनी आपको मेल कर देगी। अब आपको वहां पे डेट्स इंपॉर्टेंट है, वहां पे डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आपको देखना होगा कि हर महीने में कौन सी डेट को आपको पैसा डिडक्ट करवाना है, 15 को, 20 को, वो आपको म्यूचुअल फंड फॉर्म्स में बताया गया होगा। कोई भी एक डेट सिलेक्ट करो तो हर महीने की वो डेट पे ही आपका पैसा डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट करके ट्रांसफर कर देगी, राइट। दिस इज नथिंग बट द MIS, मंथली इनकम स्कीम और रिकरिंग स्कीम। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप जितना अर्ली 500, मिनिमम 500 रुपये से भी 500 रुपीज से भी आप आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो।
राइट। और अगर स्टूडेंट के टाइम में आपने अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है तो पहला आपको फायदा क्या होगा, एक तो आपको सेविंग, आपका जो सेविंग ओरिएंटेड अप्रोच है वो इंक्रीज होगा, राइट। यू पीपल बिकम ए सेविंग हैबिटेटेड, राइट। दूसरी चीज, आपको जो चीज जॉब के टाइम पे पता चलनी चाहिए वो आपको कॉलेज के टाइम पे पता चल रही है, उतना आप एडवांस चल रहे हैं, राइट। सिस्टम को पहले ही आपको एक्सपीरियंस कर लोगे ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम, वो आपका बेनिफिट्स रहेगा। नेक्स्ट है, अब एडवांटेजेस क्या है, एसआईपी के एडवांटेजेस क्या है। इट एनेबल्स रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स विदाउट एनी एडिशनल पेपर वर्क। सिर्फ कुछ इसमें पेपरलेस पूरा सिस्टम है, राइट, ड्यू टू ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। आपको कुछ नहीं का ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसको अकाउंट से लिंक करना है, डेट सिलेक्ट करनी है, कंप्लीट हर महीने आपको 10 दिन पहले आपको एक रिमाइंडर आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज कि आप प्लीज कीप दिस बैलेंस, अमाउंट ऑफ बैलेंस इन योर अकाउंट, ऑन दिस पर्टिकुलर डेट योर इंस्टॉलमेंट विल बी डेबिटेड, राइट। कन्वीनियंट वे टू इन्वेस्ट रेगुलरली, राइट। कन्वीनियंस ऑफ इन्वेस्टिंग स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स, ये स्मॉल इंस्टॉलमेंट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसका बेनिफिट है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट्स, में आपको आगे बताता हूँ। नो टाइमिंग द मार्केट, राइट। ये हर एक, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जनरली जो इन्वेस्टर्स है जो डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, वेट करते हैं कि कब मार्केट डाउन आए मैं इन्वेस्टमेंट करूं और हाई जब जाए तब मैं निकालूं। आज के टाइम में इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब कोई भी एक्सपर्ट्स गारंटी नहीं दे सकता, कोई भी एक्सपर्ट कैन नॉट टाइम द मार्केट, राइट। इवन वॉरेन बफेट also cannot give the perfect timing about the market, right. It is a invisible hand of the Sensex, invisible working system of the market, right. We can assume, we can predict the market, but we cannot give the sure shot. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आपको रिस्क रिड्यूस करना है या रिस्क को एवरेज आउट करना है तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी चक्रवृद्धि ब्याजનો नियम, राइट। मूडी प्लस ब्याज, ब्याज प्लस ब्याज प्लस ब्याज, दैट इज ऑल्सो ए मेन बेनिफिट ऑफ दिस एसआईपी। दो बेनिफिट है, कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट और पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये दो की एलिमेंट ऐसे है कि जिससे पीपल आर अर्निंग इन द लॉन्ग टर्म। देखो, अगर कोई स्टूडेंट 25 साल की एज में हर महीने फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करता है, जब तक वो 60 ईयर का नहीं होता, राइट। तो 25 साल वाला जो स्टूडेंट्स है वो 60 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट कितना करेगा, 4,20,000 रुपये उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किए होंगे। और जब वो 60 ईयर का होगा तब उसके पास फंड वैल्यू होगी उसकी अप्रोक्सीमेटली 23 लाख। देखो, मगर अगर आप 25 साल पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करते हो और 30 साल पे करती, आप जब 30 साल के हो जाते हो तब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, राइट। तो आपका हर महीने 1000 की अगर आप एसआईपी करते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा ड्यूरिंग एट द एज ऑफ 60, आपका आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा 3,60,000। और 60 ईयर की एज में जब आप रिटायर होगे तब आपको फंड मिलेगा 15 लाख। देखो, जैसे जैसे आप लेट कर रहे हो वैसे वैसे आपकी रिटायरमेंट की जो फंड वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है, राइट। तो इसके लिए आई एम गिविंग द एडवाइस कि स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल एंड इन्वेस्ट रेगुलरली। ये दो इन्वेस्टमेंट मंत्र है जो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स ने दिए हैं, दैट आई एम टेलिंग, राइट। स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, छोटी सी भी अमाउंट है मगर स्टार्ट करो। नाउ अगेन मैंने पहले बताया था कि भाई स्टार्टिंग जो बंदा, जो स्टूडेंट्स पहले स्टार्ट करता है उसको क्या बेनिफिट्स है। देखो, मिस्टर राम एंड श्याम बोथ आर फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड है, राइट। राम जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है एट द एज ऑफ 20। जब उसकी एज 20 साल की है तब वो एसआईपी स्टार्ट करता है, हर महीने 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए की वो हर महीने एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है एट द एज ऑफ 20। वो कब तक इन्वेस्टमेंट चालू रखता है, जब वो 30 साल का हो जाता है तब वो पूरा पैसा विड्रॉ कर लेता है और तब वो एसआईपी स्टॉप कर देता है, राइट। मतलब वो 10 साल तक हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी इन्वेस्टमेंट करता है, राइट। तो हम देखेंगे कि वो पैसा इन्वेस्टेड है, पैसा वो विड्रॉ नहीं किया उन्होंने एसआईपी स्टॉप कर दिया, राइट। पैसा नया इन्वेस्ट करना स्टॉप कर दिया मगर वो फंड तो उन्होंने म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टेड रखा। तो 10 साल तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हर महीने 5,000, तो उसकी फंड वैल्यू क्या है। श्याम जो उसका दोस्त है उन्होंने हर महीने, जब उसकी एज 30 साल की होती है तो जब 30 साल का होता है तब उन्होंने स्टार्ट किया हर महीने 10,000 रुपए, और वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने चालू रखा
जब तक वो रिटायर नहीं होता, 60 ईयर का नहीं होता फॉर एग्जाम्पल। देखो श्याम की अमाउंट भी ज्यादा है, 10,000 है, श्याम वो रिटायरमेंट तक कंटिन्यू भी करता है, राइट। मगर गलती क्या है, देखो दोनों की फंड वैल्यू में क्या डिफरेंस है, सी द डिफरेंस। राम ने सिर्फ 10 साल इन्वेस्टमेंट किया है, फिर भी उसकी रिटायरमेंट की जो फंड वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ 11 करोड़ रुपीस है, राइट। और दूसरा है श्याम, उन्होंने 30 साल से चालू किया और लाइफ रिटायरमेंट तक की एज तक इन्वेस्टमेंट 5,000 नहीं, वो 10,000 डबल इन्वेस्टमेंट करता है, फिर भी उसकी फंड वैल्यू है 3.5 करोड़, राइट। तो ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस इसके लिए है, देखिए कि राम ने 20 इयर्स की एज पे स्टार्ट किया था, श्याम ने 30 साल की एज पे स्टार्ट किया था। तो ये अगर आप ये सब सारी चीज आप देखते हो तब आपको पता चलता है, राइट, कि ये मैंने गलती कर दी है। जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करते तो आपको लॉस पता नहीं चलता, मगर ये आप जब एग्जांपल देखते हो तो आपको लॉस पता चलता है कि मैंने लेस स्टार्ट किया तो मुझे कम से कम 7 करोड़ रुपीस का लॉस है, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट as early as possible with minimum 500 rupees amount. Next one is rupee cost averaging concept. देखो आपको क्या देखना है, दो NAV देखनी है, दोनों टेबल में NAV देखनी है। ये दोनों मार्केट कंडीशन मैंने लिया है, राइजिंग मार्केट और फॉलिंग मार्केट। ये राइजिंग मार्केट और फॉलिंग मार्केट में आपको क्या देखना है, NAV एंड यूनिट्स। तो राइजिंग मार्केट में आप देखेंगे NAV 10 रुपये, 10.5, 12, 14, 17, 18। तो ये राइजिंग मार्केट में क्या होता है, जैसे मार्केट ग्रो होता है वैसे वैसे म्यूचुअल फंड की NAV की जो पर यूनिट वैल्यू है वो ग्रो होती है। वो तो आपके लिए, इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव सिचुएशन है, क्योंकि हमारी फंड वैल्यू भी ग्रो होगी। मगर दूसरा फॉलिंग मार्केट में आप देखिए, पहले महीने में 10 रुपीज NAV, फिर मार्केट डाउन गया तो 9.75, फिर 9 रुपीज, फिर 7 रुपीज और 6.5, 6 रुपीज। देखिए 10 रुपये की NAV 6 रुपीज हो गई। देखिए तो आपको लग रहा होगा सर ये तो हमें लॉस है, डाउन जो मार्केट जाता है तो हमें भी हमारी वैल्यूएशन डाउन जाती है। ओके, आप सही हो, राइट। मगर डाउन मार्केट में आपको पैसा विड्रॉ नहीं करना है, आपको इन्वेस्टेड रहना है। क्यों, फायदा क्या है, देखो डाउन मार्केट में जितना प्राइस कम होता है, NAV कम होती है, वैसे वैसे आपकी बाइंग यूनिट कैपेसिटी इंक्रीज होती है। देखो 10 रुपीज में आपको 1000 रुपीज, फॉलिंग मार्केट में आप देखिए 10 रुपीज में आपको 1000 यूनिट मिला। जैसे ही वो 9 रुपीज हो गई NAV तो आपको 1111 यूनिट मिले। 7 रुपीज NAV हो गई तो 1428 यूनिट मिला। इट मीन्स कि डाउन मार्केट में आप ज्यादा यूनिट कलेक्ट कर रहे हो, राइट। अब जैसे ही यूनिट ज्यादा परचेस कर लिए, यूनिट आपके पास ज्यादा आ गए, जैसे ही मार्केट प्लस जाएगा तो आपकी वैल्यूएशंस भी प्लस जाएगी पूरे फंड की। ये कंसेप्ट को बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ रुपी एवरेजिंग कंसेप्ट, और यही की एलिमेंट है ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। तो आपको इसके लिए कम से कम 3 ईयर टू 5 ईयर्स का आपको होराइजन होना चाहिए, और उससे ज्यादा है तो आपके लिए अच्छा है, राइट। तो ये मेन बेनिफिट है कॉस्ट ऑफ रुपी एवरेजिंग कंसेप्ट का। यूजिंग SIP प्रैक्टिकली, लेट अस टेक वन एग्जांपल। हम एग्जांपल लेते हैं। देखो, हरीश इज 22 years old, has just started working. He has an aspiration of becoming a millionaire on his own, but he is afraid that he doesn't possess good knowledge of investing. What should he do? एक 22 साल का मिस्टर हरीश है, उसको पता नहीं है कि मुझे उसको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, राइट। उसको पता नहीं है कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे। तो दूसरा जो ऑप्शन है उसमें सॉल्यूशन दिया गया है, मिस्टर हरीश कैन इन्वेस्ट a small amount every month in an index fund. Let us say he invests ₹2,000 per month, right? अगर उसको हम एजम्पशंस 12% रिटर्न का लेते हैं और उस हिसाब से अगर उनको रिटर्न मिलता है तो वो 37 ईयर्स का जब होगा तो he will become a millionaire, right? This is a assumptions, right? This is a assumption. If everything works according to the assumption, then Harish can become a millionaire at the age of 37 years. That is the power of compounding or cost of rupee averaging. Second example, Mr. John, age of 22, wants to buy an SLR camera
he can invest a small amount every month in overnight fund. He can invest ₹1,000 per month in SIP mode. देखो, अगर जॉन है 22 इयर्स का एज है, उनको SLR कैमरा लेना है, अगर वो 3 साल तक हर महीने ₹1,000 इन्वेस्टमेंट करता है, तो अगर उनको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर मिलता है, तो वो 3 साल में वो अपना SLR कैमरा, अपना जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो अचीव कर लेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव टू फिक्स योर इन्वेस्टमेंट गोल फर्स्ट। आपको पहले आपका इन्वेस्टमेंट गोल डिसाइड करना, राइट, कि भाई अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल। फॉर एग्जांपल, मैंने जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, तो मेरे जो इन्वेस्टमेंट गोल था कि मैं क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो भाई ये फंड में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कि मुझे प्रॉपर्टी बाई करनी है इतने साल के बाद, तो ये इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ क्योंकि आई नीड टू स्पेंड ऑन माई मैरिज फॉर एग्जाम्पल, राइट। ये इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ फॉर माई सन्स एजुकेशन। ये मेरा जो इन्वेस्टमेंट है डेट इज फॉर माई रिटायरमेंट प्लानिंग। तो आपको ये गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना है और उस पर आपको कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करते रहना है, राइट, विथ योर काइंड रिसर्च। ये मैंने SIP कैलकुलेटर रखा है, राइट। ये लिंक के थ्रू आप SIP कैलकुलेटर आपको देखना है कि भाई मुझे 5 साल के बाद SIP कैलकुलेटर में क्या होगा कि 5 साल के बाद मुझे इतना पैसा चाहिए, ये इतनी अमाउंट मुझे चाहिए, तो मुझे हर महीने कितना इन्वेस्टमेंट SIP में करना होगा, तो SIP कैलकुलेटर आपको सपोर्ट करेगा, राइट। ये लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट ये लेक्चर के बाद आप SIP कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। दूसरा है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। देखो, ये किसके लिए है? जो स्टूडेंट्स ने 25 साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और 40 साल तक, मतलब नेक्स्ट 15 साल तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा, अब 40 साल के बाद जब वो 40 ईयर्स 40 साल जब वो 40 ईयर्स का हो जाता है, तब उसको अमाउंट चाहिए होगी। तो आपका जो फंड है, जो ऑलरेडी फंड इन्वेस्टेड किया है, उसमें से आप क्या कर रहे हो? सिस्टमेटिकली आप विड्रॉ कर रहे हो, राइट। अगर रिटायरमेंट फंड पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया, मुझे हर महीने उसमें से 10,000 चाहिए, तो आप सिस्टमेटिक विड्रॉ कर रहे हो। पहले इन किया था, फंड इन, नाउ फंड विड्रॉ, राइट। तो ये इसके लिए आपको जनरली एज ऑफ 45 टू 58 वाले कैंडिडेट्स के लिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इज द नीडी ऑप्शंस, राइट। जिसको रेगुलर सैलरी चाहिए या रेगुलर कैश फ्लो चाहिए, राइट, उसके लिए ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इज इम्पोर्टेंट। देखिए, हाउ मच, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हाउ मच शुड आई सेव, स्पेंड एंड इन्वेस्ट? देखो, तो अब किसी भी फैमिली का जो इनकम है, उसके टोटल इनकम का 30% हाउस होल्ड एक्सपेंस पे जाता है, 20% नेटवर्किंग एक्सपेंसेस है, 10% वेकेशंस के एक्सपेंसेस है, 15% लर्निंग के एक्सपेंसेस है, और बाकी के जो 25% है अर्निंग का, वो जाता है इन्वेस्टमेंट में। हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट इन डेब्ट एंड इक्विटी? मैं कैसे, अब मेरा जो 25% है जो इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप बोलोगे कि सर मैं कैसे डिवाइड करूं फंड को? 25% जो इन्वेस्टमेंट के लिए फंड मेरे पास है, वो कितना परसेंटेज में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करूं और कितना परसेंटेज में डेट में इन्वेस्टमेंट करूं? तो उसका सिंपल नियम है, सिंपल रूल है, थंब रूल है, 100 में से आपकी एज बात करिए, यू हैव टू डिडक्ट योर एज आउट ऑफ 100। उसमें से डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचती है, उतना परसेंटेज आपका सेविंग का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है। इक्विटी में, यानी डायरेक्ट इक्विटी में और म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, राइट। और बाकी का जो अमाउंट है, आपकी जितनी एज है, उतना परसेंटेज आपको डेट फंड्स में या डेट स्कीम्स में या डेट प्रोडक्ट में या उसमें इन्वेस्टमेंट टूल्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। उसके लिए आपको प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी आप हेल्प ले सकते हो, right? Why? Because I cannot give the advice over here. This is an awareness seminars, right? And I need to follow some protocols. So यहाँ से आपको पता चलेगा कि जितना आप ज्यादा लेट करते हो इन्वेस्टमेंट करने में, उतना आपका डेट साइड इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है और इक्विटी साइड इन्वेस्टमेंट कम होता जाता है। That is why you have to start your investment as early as possible. अब एज ए स्टूडेंट्स आपको कहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए? देखो, एज ए स्टूडेंट्स आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? इतनी चीज आपके पास होनी चाहिए। पहला तो यू हैव टू ओपन योर सैलरी अकाउंट या और बैंक अकाउंट, राइट। आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आधार कार्ड्स, पासपोर्ट साइज फोटोज, इफ पॉसिबल पैन कार्ड्स, राइट, एड्रेस प्रूफ आपका इंडिविजुअल। उसके बाद बैंक अकाउंट होना चाहिए,
और उसमें आपको कुछ पैसे पहले अकाउंट में इकट्ठे करने चाहिए, और उसके बाद आपको ये बैंक अकाउंट सेफ है, लिक्विड है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विड्रॉ है, राइट। आपकी एक फिनेंशियल हिस्ट्री स्टार्ट होगी, जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका फिनेंशियल हिस्ट्री स्टार्ट होगी, बैकअप स्टार्ट होगा आपका। वो हिस्ट्री आपको कब काम में आएगी, फिनेंशियल हिस्ट्री, अगर जिस बैंक के साथ आपने अर्ली बैंक अकाउंट खुलवाया है, 15-20 साल का बैंकिंग रिलेशनशिप है, तो आपको होम लोन में काम में आएगा वो रिलेशनशिप। वो रिकॉर्ड, फाइनेंशियल हिस्ट्री रिकॉर्ड आपको आगे आपकी क्रेडिबिलिटी भी इंप्रूव करेगा, राइट। दूसरा, वो अकाउंट ओपन करने के बाद आपको स्टार्टिंग में ओवरनाइट फंड्स में आपको SIP स्टार्ट करनी चाहिए, जो सेफ है, लिक्विड है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विड्रॉल है, राइट। और सेविंग अकाउंट से आपका रिटर्न ओवरनाइट फंड में ज्यादा रहेगा। ओवरनाइट फंड में क्यों आपको बता रहे हैं कि पहले आप ओवरनाइट फंड में इन्वेस्टमेंट करके पहले टेस्ट करो प्रोसेस को, सिस्टम को, प्रोसीजर को। जैसे आपका ओवरनाइट फंड में 1 साल हो गया और आपको लगा कि नहीं अब सही है, मुझे पता चल गया, देन यू मूव टूवर्ड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम। इक्विटी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। इंडेक्स, उसके बाद आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करके SIP स्टार्ट कर सकते हो, या लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। क्यों इंडेक्स फंड में करना चाहिए? क्योंकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ रिटर्न आपको मिलेगा, लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लो कॉस्ट आपको लगेगी, शॉर्ट टर्म वोलाटिलिटी का, मार्केट का आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो पहले आपका पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो आपको तो एज अर्ली एज पॉसिबल वो करना चाहिए। उसके बाद आपको स्टार्टिंग ओवरनाइट फंड से और धीरे धीरे एक्सपेंस करने के बाद आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। What should you prepare yourself with in case of a financial emergency? समझो, आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, बैंक अकाउंट भी है, उसमें भी पैसा है, फिक्स डिपॉजिट में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और ओवरनाइट फंड में भी आपने फंड रखा है। अगर आपको इमरजेंसी में कोई लिक्विड मनी का रिक्वायरमेंट है, कुछ सडनली एक्सपेंस आ गया, तो ये चारों में से आपको कहाँ से आपको पैसा लिक्विड करना चाहिए? वो करना चाहिए ओवरनाइट फंड से, राइट। दिस इज द राइट आंसर। Next example है, Harish is a peace-loving guy, but he doesn't mind taking calculated risk. We know that the equity market do well over long period of time, and he want to replicate the market return in his investment also, where he should invest. देखो, peace-loving guy है, right? उनको कैलकुलेटिव रिस्क लेने में उसका अप्रोच है, हाई रिस्क उनको नहीं लेना है, राइट। तो उनको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो आई थिंक ही कैन इन्वेस्ट इन बैलेंस फंड्स, जहाँ पे उसका 50% इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में चला जाएगा और 50% इन्वेस्टमेंट उनका डेट मार्केट में रहेगा, जिससे रिस्क एवरेज हो जाएगा। हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है तो कैसे करना चाहिए? स्टेप्स फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। देखो, पहले तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपके पास अभी सारे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आपका पैन कार्ड इंपॉर्टेंट है, पैन कार्ड पहले होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट पहले पैन कार्ड नहीं है, ID प्रूफ नहीं है, रेसिडेंस प्रूफ नहीं है, तो पहले तो आप बैंक में अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। बैंक में अगर अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते तो फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो पहले आपको नो योर कस्टमर KYC प्रोसेस के लिए आपको सारे पैन कार्ड और बैंक अकाउंट के साथ आपका KYC प्रोसेस होना चाहिए। हर एक नए इन्वेस्टर का KYC प्रोसेस इज मस्ट। अगर KYC प्रोसेस नहीं हुआ है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, राइट। KYC प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है? ऑनलाइन भी KYC प्रोसेस आप कर सकते हो, आधार कार्ड्स, पैन कार्ड्स, राइट, फोटोज, फॉर्म भरना है, ये सब कंप्लीट करके आप KYC भी कर सकते हो। और नहीं अभी हेलो हेलो हेलो, कैन यू लिसन मी? Yes, sir. ओके, राइट। तो ये आपको KYC प्रोसेस भी करनी है। तो ये वेबिनार के बाद आपको इतना तो एक्शंस मोड में जाना है कि आपको पैन कार्ड और KYC डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं है तो पहले वो एज अर्ली एज पॉसिबल क्रिएट करो, उसका प्रोसेस कंप्लीट करो, राइट। और ऑनलाइन KYC का जो पोर्टल है उस पर आप आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो
तो तुरंत ही वो 2 दिन में आपका eKYC वेरीफाइड होकर आपको मेल मिल जाएगा कि योर KYC इज वेरीफाइड। और वो वेरिफिकेशन फिर क्या होगा, उसका फायदा आपको क्या मिलेगा eKYC का, कि eKYC एक बार हो गया, आपने ऑनलाइन यहाँ पे 2 दिन में 3 दिन में आपने eKYC कर दिया, तो उसके बाद आपको कभी भी कहीं पे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको फिर से eKYC नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन नहीं करना होगा। तो उस टाइम पे आपका टाइम बच जाए, वो टाइम आपका सेव हो जाएगा। वो लोग क्या करेंगे, लोन अगर लेना है तो लोन वाले तुरंत ही वो पोर्टल पे चेक करेंगे, आपका पैन कार्ड नंबर एंट्री करके वेरीफाई करेंगे कि योर eKYC इज वेरीफाइड और नॉट। योर eKYC इज वेरीफाइड, ओके, फिर वो बैंक विल स्टार्ट योर होम लोन प्रोसेस, राइट, आगे की प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो इसके लिए eKYC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसके लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसल चेक के लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए, राइट, और डिजिटल सिग्नेचर्स। ये चारों चीज आपको अपलोड करनी है, राइट, वेबसाइट पे, पोर्टल पे, या eKYC वेरिफिकेशन आप डालोगे तो गूगल से भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये चारों चीज होने के बाद आपको eKYC प्रोसेस कंप्लीट करनी है। ये पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे किया है, कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। अपलोड योर आधार हियर, राइट, कैंसिल चेक यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ये जो पर्सनल, इस तरह से आपको ये पर्सनल इंफॉर्मेशन भी भरनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन भरते टाइम आप बहुत केयरफुल रहो, कुछ भी गलत ना हो, राइट, क्योंकि आप पहली बार ये प्रोसेस कर रहे हैं। क्लिक कर पिक, यस, आपको आपका स्क्रीनशॉट, आपका पिक लेके यहाँ पे फोटोज अपलोड करना है। रिकॉर्ड स्मॉल वीडियो ये नहीं करना है, राइट। ये पूरा आपको ये मेल आईडी पे आप भेजोगे तो भी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। यस, बेनिफिट्स ऑफ डूइंग eKYC, क्यों आपका आप इन्वेस्टमेंट रेडी हो जाते हो। वंस योर eKYC इज वेरीफाइड, यू बिकम ए इन्वेस्टमेंट रेडी, you can understand the practical understanding of the process, right? Participation, yes, मैंने फ्री ई बुक मैंने ऑलरेडी भेज दी आपको। फिजिकल मोड में भी आपका हो सकता है इन्वेस्टमेंट, आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज में जहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे आप सब डॉक्यूमेंट लेके चले जाओ, तो आपका वो ऑनलाइन फिजिकल KYC भी वो वेरीफाई कर देंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम, कैसे आप कर सकते हो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आप मोड में eKYC करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। ऑनलाइन मोड पे इन्वेस्टमेंट करने के टाइम में आपको कुछ बहुत प्रिकॉशंस लेना है, ड्यू टू इन दिस टाइम साइबर क्राइम इज ऑन हाई लेवल ऑफ मोड, राइट। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो अवॉइड ऑनलाइन मोड इन्वेस्टमेंट। इफ आर एक्सपीरियंस वन, एक बार एक ऑफलाइन का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आप ऑनलाइन मोड पे आओ। तो एज ए स्टूडेंट्स, एज ए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, एज ए न्यू इन्वेस्टर्स, you have to invest your investments through offline mode by visiting the physical institutes, financial institute physically, right? How to withdraw your money? Yes, आपको कब आपका जो इन्वेस्टमेंट वाला जो पैसा है वो विड्रॉ आपको करना है, तो आप कभी भी आपका पैसा विड्रॉ कर सकते हो। आपको फिजिकली वो ब्रांच पे जाना है, राइट। वहाँ पे आपको एक रिडम्पशन स्लिप भरनी है, जैसे आप दोगे उस दिन की प्राइस के अकॉर्डिंगली 3 दिन में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, राइट। और ऑनलाइन मोड पे आप अगर रिडम्पशन करते हो तो भी आपका पैसा 3 दिन में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटीज है, राइट। ऐसा लॉक इन नहीं है कि आपको पैसा 5 साल रखना ही या 10 साल रखना कंपलसरी नहीं है। यू कैन विड्रॉ योर मनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, यस, ये सारे NAV कैलकुलेशंस, पर डे NAV, राइट। ये जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो उसके बाद की चीजें। यस, नॉमिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, नॉमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप म्यूचुअल फंड में नए इन्वेस्टर बनते हो तो आपको फॉर्म, जब अगर फिजिकल जाते हो ब्रांच में, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि फर्स्ट होल्डर, दूसरा जॉइंट होल्डर, राइट। तो अगर आप बैचलर है तो आपको फर्स्ट होल्डर पे ही आपका नाम लिखना है, और नॉमिनी में
आपको मदर या फादर का जो भी फैमिली में डिस्कशन करने के बाद आपको नॉमिनी में नाम लिखना है, राइट। नॉमिनेशन इज इम्पोर्टेंट, नॉमिनेशन इज मस्ट। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मैंने नॉमिनी मेरी वाइफ का नाम नहीं रखा है, और अगर मुझे कुछ हो जाता है और मेरा जो फंड है वो किसको, गवर्नमेंट या म्यूचुअल फंड कंपनी किसको देगी? नॉमिनी तो मैंने लिखा नहीं, राइट। तो फिर वो लीगल प्रोसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, टेक्निकल प्रोसेस। हमारा फिर क्या होगा पता है, मेरा पैसा होते हुए भी मेरे फैमिली मेंबर को वो पैसा लेने के लिए उसको लीगल प्रोसेस करनी होगी। एक छोटी सी गलती कि मैंने नॉमिनेशन में नॉमिनी नहीं लिखा था, तो नॉमिनेशन इज इम्पोर्टेंट। मगर जब शादी होती है तो जिसकी शादी हो जाती है उनको क्या करना है, फर्स्ट होल्डर में आपका नाम लिखना है, सेकंड होल्डर में आपकी वाइफ का नाम लिखना है, राइट। और नॉमिनी में आपकी नेक्स्ट जनरेशन का नाम लिख सकते हो, राइट। मैंने ऐसे किया, फर्स्ट होल्डर माई नेम, सेकंड होल्डर माई वाइफ नेम, जो हम दोनों इन्वेस्टमेंट हमारे फंड को मैनेज कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति सिग्नेचर करेगा तो विड्रॉ कर सकेगा पैसा, और नॉमिनी में मेरा सन। सो दिस ऑल आर द फ्यू मिस्टेक्स जो आपको आपके जो फैमिली को लीगल एक्सपेंसेस बढ़ा सकते हैं। यस, कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है या कोई प्रॉब्लम हुआ है या इन्वेस्टमेंट में मुझे कंप्लेन है, तो आप इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर जो म्यूचुअल फंड कंपनी के हैं उसको आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर वहां से आपको सही रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप आगे एक सेबी की एक वेबसाइट है कंप्लेन की, इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस मैकेनिज्म की, www.scores.gov.in, राइट। जिसमें आप ओपनली कभी भी आपको कोई भी कंप्लेन है अबाउट एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड के बारे में, कोई भी बैंक के अगेंस्ट में, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स है, तो आप scores.gov.in पर आप इन वेबसाइट पे आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हो, राइट। ये भी एक रास्ता है। So this is nothing but the investor protection seminar or investor awareness seminars, right? This is the SEBI redressal system. I have already told. This is the SEBI's online complaint portal. SEBI complaint redressal system, register complaints online. You have to log in to visit http://scores.gov.in. SEBI has provided a centralized web-based complaint redressal system on its portal named Scores. If you are not satisfied with the response from a particular mutual fund company intermediary, you may then lodge an online complaint with SEBI through Scores to get your complaint redressed. SEBI take up the complaint registered via Scores with the concerned company mutual fund intermediary for timely redressal. आप जैसे ही कंप्लेन लॉन्च करते हो कोई भी कंपनी के अगेंस्ट में, तो म्यूचुअल फंड SEBI उस म्यूचुअल फंड कंपनी को आपकी कंप्लेंट पहुंचाएगी और SEBI will collect the force them to process this complaint, give the proper or right solution for this complaint. So you have to remember these websites. Yes, steps to investing in mutual fund. First step is you have to do KYC, right? Second one is start saving in liquid or overnight fund. Second step for new investor. Third one, graduate from savings to investing in simple funds. फिर आप आगे और फंड्स में इन्वेस्टमेंट करिए. एंड फोर्थ वन, क्रिएट ए फाइनेंशियल प्लान, राइट. ये स्टूडेंट्स टू इन्वेस्टर, ये स्टेप फॉलो करोगे तो आप स्टूडेंट से इन्वेस्टर्स स्टार्टिंग फेज से लेके फाइनेंशियल प्लानिंग तक आप पहुंच सकते हो. अल्टीमेटली वी ऑल नीड फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट. हमारे पास वेल्थ हो, हमारे पास मैक्सिमम, हमारे लाइफस्टाइल का मेन पर्पज और क्या है, हमारी अर्निंग ज़्यादा हो, हमारी खर्चे कम हो, हमारी सेविंग्स ज़्यादा हो, हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो. स्टार्ट अर्ली योर इन्वेस्टमेंट्स, रेगुलरली इन्वेस्ट इन योर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टूल्स, और हम हमारी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सके, हमारी प्राइमरी नीड्स और लग्जरी नीड्स दोनों को हम सेटिस्फाई कर सके, हम अच्छी हेल्दी लाइफ जी सके, हम हमारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सके. उस टाइप की हमें सभी लोगों को, ऑल ह्यूमन बीइंग को, वी ऑल नीड फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट. तो वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, वो एक आप स्टूडेंट्स को
एक अर्ली स्टेज में अवेयर करने के लिए हमारा पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन MBA इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा प्रयास था, राइट। ये कंप्लीट, दिस इज ओनली अ ट्रेलर, राइट, जस्ट टू limelight your mindset. This thing is very important so that आप जल्द से जल्द अवेयर होंगे तो आप इंटरेस्ट होंगे, इंटरेस्ट होगा तो आप एक्शन लेंगे, एक्शन आप लेंगे रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल प्लान तो आपको आउटपुट मिलेगा. एंड दिस इज द आवर नोबल कोज दैट आवर youngsters, right, young Indians, future of India must be well informed, must be well aware about the investments, right. हमारे पापा की तरह या फॉर एग्जांपल हमारे दादा की तरह कोई बंदा हमारे घर पे आके बोले कि मैं पर्टिकुलर मित्र मंडल से आया हूँ, मैंने स्कीम लॉन्च की है, 2 दिन में डबल हो जाएगा, 1 साल में डबल हो जाएगा. सो एवरीबडी कैन नॉट बी फूल अस. कोई भी चीटर हमें फूल नहीं बना सकता या हमें फूल नहीं बनाना चाहिए. कब नहीं बना पाएगा? जब अगर हमारे पास बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन का नॉलेज है, राइट. धीरे धीरे आपने अगर बेस बना लिया तो फिर आगे जाओगे एडवांस लेवल ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, और थर्ड लेवल आएगा टेक्निकल लेवल ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, जहाँ पे आप खुद आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को आप मैनेज करोगे. एंड दिस इज द वेरी स्टार्टिंग स्टेज फॉर यू पीपल, राइट. अगर मैं यहाँ पे आपको एडवांस वर्जन या टेक्निकल लेवल लेके आपको पास आ जाता तो बेसिक ही आपको अगर पता नहीं होगा तो यू पीपल माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन दिस webinar or for long term or for this 1.5 hour durations, right. So I really thank you all the participants for giving your valuable time to this webinar. Patel Group of Institution is a 10 years old MBA, MCA, BBA, BCA institutes affiliated with GTU. We always trying hard for the betterment of the students and for the betterment of the society, right. And you know that कि आने वाला टाइम है वो नॉलेज का आने वाला है. नॉलेज इज अ पावर. अब वो टाइम नहीं रहा कि मसल्स इज अ पावर, वो टाइम चला गया. अगर आपके पास नॉलेज है, यू कैन क्रिएट योर करियर, you can create a miracle in your career, right. And this during corona pandemic time we all must have to be safe, we all must have to save our health. हमें हमारे हेल्थ को तो सेफ रखना ही है, हमारी प्रायोरिटी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जान है तो जहान है. मगर हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के बाद, प्रिकॉशंस लेने के बाद, हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने के बाद, राइट, हमें ध्यान में लाना है हमारा सेविंग्स में, हमारा इन्वेस्टमेंट में, और हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, राइट. वी कैन सी सराउंड कि जिन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया था उसको कोरोना के टाइम पे उसके इन्वेस्टमेंट पे या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इफेक्ट आई, राइट. और दोस्तों, आज का टाइम इज वेरी क्रिटिकल टाइम. एवरीबडी इज अ प्रोफेशनल, एवरीबडी इज वरीड अबाउट देयर फैमिली, राइट. तो इस चैलेंज से हमें नेगेटिव नहीं होना है, इस चैलेंज को हमें पॉजिटिवली लेना है, मगर हमें रास्ते ढूंढते रहना है कि ये किस रास्ते के थ्रू इस चैलेंज को हम कॉप अप कर सके, जिससे हमारी हेल्थ यानी कि पर्सनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ दोनों को हम प्रोटेक्ट करके चलें, और जिससे हम हमारे लाइफस्टाइल को भी बैलेंस करके चले, राइट. तो यही हमारा एक छोटा सा प्रयास था. हो सकता है कि टाइम लिमिट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सभी चीज़ आपको डिटेल में नहीं समझा सका, वो भी हो सकता है. सो आई विल गिव यू द माय पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर. यू कैन कॉन्टैक्ट मी. You can contact me personally, right, for your any questions, or even you can we have a time for 5 minutes, so you can share your questions in chat box. Hello. Hello. Now we'll have a question answer session for a 5 minute. If you have any question, you can ask. You can drop your question in comment box. And even this feedback form is shared in your chat box. I request all of you to fill the feedback form, and on the basis of feedback form, we will send you the mail. We will send you the your certificates through mail. I will drop my number. Even you can
Yes, one question from Pujan Kumar Patel. That is exchange traded fund versus mutual fund, whichever is best. Mr. Pujan Kumar, exchange traded fund is a part of mutual fund. It is a part of mutual fund itself, right? मैंने जैसे बोला था कि आपको आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए. आप अगर गोल्ड में, हमारे में एक ट्रेडिशन है गुजराती में कि हम हर साल कुछ अमाउंट गोल्ड परचेस करते हैं धनतेरस के दिन, राइट? तो अगर आप फिजिकल गोल्ड परचेस करते हैं देन देयर इज नो नीड टू इन्वेस्ट इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. अगर वो आपका फिजिकल गोल्ड का आपका टेस्ट है तो, राइट? मगर आपको लगता है कि नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू मुझे गोल्ड परचेस करना है, तो आप क्या कर रहे हो, आप पैसा दे रहे हो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को, वो फंड मैनेजर को. वो फंड मैनेजर्स गोल्ड माइनिंग कंपनीज या फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके वो रिटर्न जनरेट करके आपको आपके फंड में आपको रिटर्न जनरेट करके देगा. तो मेरे हिसाब से इट इज द गुड ऑप्शन, मगर यू हैव टू स्टडी द प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. पहले उसका आपको कौन से लिमिटेशंस है, रिस्क क्या है, उसके स्टडी करने के बाद आपको जाना चाहिए. मगर मेरे अकॉर्डिंगली आपके अगर 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 5 रुपीज का 5 रुपीज का इन्वेस्टमेंट या 2 to 5 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आपको गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. यानी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का 2% से लेके 5% तक इन्वेस्टमेंट आपको ETF में करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए. दिस इज माई ओपिनियन. In this time, the first required quality is to speak, right? If you want to sustain in the competitive time, you must have to learn how to speak, when to speak, where to speak, and why to speak. I request all the participants to fill the feedback form before today evening if possible, or within 2 days. Submit your feedback form within 2 days so that we can send you that e-certificate through your mail. Okay, I think you can ask through my WhatsApp number also. I have already said my WhatsApp number. If any any individual question is related to investments. Okay, thank you, ma'am. All right, sir. Thank you so much for sharing this valuable knowledge with us. Thank you so much to the participant as well for giving their precious time and attending this webinar. Thank you so much, all of you from Patel Group of Institution. Okay, so over here we all are ending the lectures. Everybody, please take care of yourself and best of luck to everyone. Thank you, everyone.